Hey everyone, welcome to White Falcon Publishing YouTube channel. In today's video, we'll discuss why writing book reviews will make you a better writer. What are the benefits of writing reviews? Why are the book reviews important to writers? All these questions are already in your mind, so today I'm here to answer your questions in today's video. So in today's video, we'll discuss why book reviews are important to writers. Book reviews क्यों important होते हैं writers के लिए, उससे क्या improvement आती है writers में, and उनका क्या role होता है in writing process. वो सारी चीजें हम आज के वीडियो में discuss करेंगे. And if you like these types of informative videos, so please subscribe to our channel, like and share our video. So now let's start with the video. Writing book reviews can be excellent practice for aspiring writers and can contribute to their growth and improvement in several ways. First one is analytical skills. When writing a book review, you need to analyze the story structure, characters, themes, and writing style. This analytical process enhances your ability to critically evaluate literature, enabling you to understand what works well and what doesn't. This skill is transferable to your own writing as you'll become more adept at identifying strengths and weaknesses in your own stories. While writing a book review, you have to take care of these things like structure, characters, themes, and writing styles. इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है while writing a book review. जब आप एक book review लिख रहे हो तो आपका एक प्रोसेस होता है, आपने उस चीज का ध्यान रखना है कि उसकी थीम क्या है, स्टोरी की राइटिंग स्टाइल क्या है, कैरेक्टर्स क्या है, कौन से कैरेक्टर्स हैं. जब इन सारी चीजों को आपको पता होगा तो आप इजीली बुक रिव्यू लिख सकते हो, आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती इन राइटिंग प्रोसेस. एंड ऑल्सो दिस स्किल इज ट्रांसफरेबल टू योर ओन राइटिंग एज यूल बिकम मोर adept at identifying strengths and weaknesses in your own stories. Second one is articulation and clarity. Crafting a concise and informative book reviews demands clear communication for your thoughts and opinions. This exercise helps you practice expressing complex ideas in a coherent manner. Improved articulation and clarity in your reviews can positively impact your storytelling abilities, making it easier for readers to engage with and comprehend your work. While writing your book reviews, एक चीज होनी चाहिए clarity. आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो, कि जो चीज आपने अंडरस्टैंड करी है, जो स्टोरी आपने रीड करी है, आप वैसे ही जो रीडर्स हैं आप उनको कन्वे कर रहे हो. ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए बुक रिव्यू में, ताकि जब कोई रीड कर रहा है आपका बुक रिव्यू तो वो आपके साथ एंगेज कर पाए, वो समझ सके आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका ओपिनियन, कि आप क्या उन्हें बताना चाहते हो. तो इसलिए क्लैरिटी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए बुक रिव्यू में, ताकि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, वो इजीली जो भी रीड कर रहा है बुक रिव्यू वो इजीली उस चीज को अंडरस्टैंड कर पाए, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड कर पाए, आपका ओपिनियन अंडरस्टैंड कर पाए कि आप किस वे से वो चीज लिख रहे हो. Now third one is exposure to diverse writing styles. Reading and reviewing various books expose you to different writing styles and voices. This exposure can inspire you to experiment with new techniques and approaches in your own writing. It broadens your creative horizons and encourages you to evolve as a writer. जब आप डिफरेंट बुक रिव्यूज रीड करते हो, लिखते हो, उससे क्या होता है, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आती है, आपको चीजें क्लियर होती हैं, आपको डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स के बारे में पता चलता है, डिफरेंट वॉइसेस के बारे में, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज के बारे में पता लगता है. ऐसा नहीं है कि अलग अलग स्टोरीज होती हैं, अब देखो अलग अलग वैसे ही उसको लेके हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, हमारे ओपिनियंस होते हैं. और जब हम डिफरेंट बुक रिव्यूज लिखते हैं, डिफरेंट रिव्यूज लिखते हैं, तो हमारे डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, उसको लेके पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं. तो हमें क्या पता लगता है, एक तो हमें अलग अलग वॉइसेस, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज पता लगते हैं, एंड सेकेंड थिंग हमें डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स पता लगते हैं कि हम कैसे लिख सकते हैं. जब हम रीड भी कर रहे हैं तो हर बंदा अपने अलग वे में अलग पॉइंट ऑफ व्यू लिखता है, अलग रिव्यू लिखता है. जरूरी नहीं है जैसा आप लिख रहे हो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी वैसा सेम हो, पर जब आप जिस टॉपिक पे आप रिव्यू लिख रहे हो और वो भी उसी पे लिख रहे हैं तो आपको अलग अलग ओपिनियंस होते हैं दोनों के. और जब आप वो रीड करते हो तो आपको एक्सपोजर मिलता है, आपको वो चीज भी रीड करने को मिलती है, वो आइडिया भी आपके दिमाग में आता है कि हाँ इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था और मेरा ये था, उससे एक्सपोजर मिलता है. Now fourth one is understanding audience and reception. By writing book reviews, you gain insights into how readers respond to different elements of a story. Understanding what resonates with an audience and what doesn't can help you tailor your writing to better connect with your target readership. जब आप बुक रिव्यू लिखते हो तो उसमें आप क्या करते हो, उसमें आप अपना ओपिनियन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखते हो
कि आपको वो चीज रीड करके क्या समझ आया है, क्या अंडरस्टैंड हुआ है, वो चीज आप एक बुक रिव्यू में लिखते हो। तो आपको उससे क्या पता चलता है कि जो रीडर है उनका क्या ओपिनियन है। आप एक उनके थॉट ऑफ व्यू से पढ़ते हो कि मैं एक रीडर हूँ, ये किसी ने एक बुक लिखी है और हम वो रीड करके उसका बुक रिव्यू दे रहे हैं। आप एज अ रीडर ओपिनियन अपना लिखते हो, नॉट अ राइटर। एज अ राइटर नहीं लिखते आप, एज अ रीडर लिखते हो आप ओपिनियन अपना। तो वो चीज आपको होती है, आपको उनका पर्सपेक्टिव पता लगता है कि एज अ रीडर पर्सपेक्टिव में कैसे वो चीज रीड करूंगा और मेरे माइंड में क्या चीज आएगी वो रीड करके। एंड सबसे मेन चीज उससे हमें हेल्प मिलती है कि हमने जो चीज लिखी है वो चीज अंडरस्टैंडेबल है या नहीं है, या वो ऑडियंस को रिलेट कर पा रही है या नहीं कर पा रही। उससे हमें वो सारी चीजें पता लगती है उस टाइम। Now, fifth one is building discipline and routine. Writing book reviews regularly instills discipline and establish a writing routine. Consistent writing practice is vital for any writer's growth. When you're writing consistently, you'll find it easier to maintain a writing schedule for your own creative projects. Discipline and routine is very important. डिसिप्लिन भी होना चाहिए एंड एक रूटीन भी होना चाहिए, एक शेड्यूल भी होना चाहिए। जब आप कंसिस्टेंसी में राइटिंग करते हो, कॉन्टिन्यूसली राइटिंग करते हो बिना किसी गैप के, तो उससे क्या होता है, आपकी एक रूटीन बन जाती है। जब आप बुक रिव्यूज कंसिस्टेंटली लिख रहे हो, रेगुलरली लिख रहे हो, तो आपकी एक रूटीन बन जाती है। और जब आपके वो प्रोजेक्ट्स में आता है, आपको अपना कोई प्रोजेक्ट करना है, तो आपको उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आती, क्योंकि वो आपकी हैबिट बन जाती है। आप उससे हैबिचुअल हो जाते हो कि हाँ मुझे राइटिंग करनी है, उसमें आपकी कोई डीमोटिवेशन नहीं आती। इट्स ऑल राइट, मैं राइटिंग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो उससे आपकी एक रूटीन बन जाती है, वो हेल्प हो जाती है आपकी। नाउ सिक्स्थ वन इज रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ अवेयरनेस। बुक रिव्यूइंग encourages self reflection on your own preferences and writing goals. Understanding what you appreciate in others' writing can help you develop a deeper awareness of your unique writing style and aspirations. जब आप बुक रिव्यू लिखते हो, आप इनकरेज होते हो, आपको ये होता है कि हाँ मैंने बुक रिव्यू लिखा है तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अब आपको उससे क्या होता है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी आ रही है, अगर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो अगले उसके क्या है, जब वो रीड कर रहे हैं तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। वो अलग अलग सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। जब आप दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू रीड करते हो, आप ज्यादा अवेयर होते हो, आपके अंदर अवेयरनेस आती है एंड आप इजीली वो चीज समझते हो, आप डीपली वो चीज समझ पाते हो। सो दीज आर द पॉइंट्स व्हाई राइटिंग बुक रिव्यूज विल हेल्प यू एज अ राइटर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू like this video, please hit the like button, and also for more informative videos like this, subscribe to our channel and press the bell icon below for updates on writing, reading, new releases and publishing.